Hello everyone. Good afternoon. Today is a very special day. Our independence. इंडिया की आज इंडिपेंडेंस है, इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है और टुडे इज़ आवर independence, and we all are going to celebrate today with Lalit Pandit ji, and so keep coming, please keep joining, we are waiting for you all. और जल्दी जल्दी से join कीजिए, and we're gonna start at 12:30 USA time and 10 India time. So don't miss. This is going to be an amazing show today, and we are going to hear a lot about Lalit Pandit ji today. And here only, Praveen ji, we are going to be Facebook Live, and Lalit ji is going to join us today on my Facebook Live and his page as well. So please do join us, and if you have anything, if you want to listen to any song, if you have any queries, if you want to talk to him, do type things, do type in here on the Facebook Live, and he's gonna answer and he's gonna sing your favorite songs, because इतनी लंबी लिस्ट है उनके गानों की कि अगर मैं आज बताने शुरू कर दूं तो it is not going to end also. So let's wait for some more time and let people join. Please keep on joining, because we're gonna celebrate Independence Day today with Lalit Pandit ji, and the duo is very famous, that is Jatin Lalit, but आज हमारे साथ हैं Lalit Pandit ji, and he's an amazing composer. और उनके बारे में क्या ना कहें और क्या कहें, he's a very down to earth person. He's an amazing composer, और एक legend है जो I am so feeling so privileged, so blessed that he is going to be with us today, and we are going to have a blast. बहुत मज़ा आएगा, और I'm just waiting for you guys just to join. Please keep joining, and जल्दी आइए आप लोग और ज्वाइन कीजिए. We have just 2 more minutes left, then I will start the show, that is Tea Time Talks with Tarang, and we're gonna chit chat, we're gonna have little fun, we're gonna celebrate Independence Day, we're going to talk about his whole journey. So बहुत सारी बातें आप लोगों के साथ करनी है और उनके साथ भी करनी है, और आप लोगों को entertain करना है. So today is the day, so please keep joining, keep coming, and enjoy the whole show today. So I'm just waiting for some more time, or 1 minute, and then we're gonna start our show, that is Tea Time Talk with Tarang. प्लीज़ हार्ट्स भेजते रहिए अपने, क्योंकि आई नो उनके फेवरेट, उनके गाने इतने खूबसूरत हैं, इतने रोमांटिक हैं, किंग ऑफ रोमांटिक सॉन्ग्स, आई शुड से. सो प्लीज़ अपने हार्ट्स हमें भेजते रहिए, अपना प्यार हमें भेजते रहिए. दिस इज़ हाउ वी आर गोना नो. सो यस, वेलकम टू टी टाइम टॉक्स विद तरंग. मैं हूँ आपकी होस्ट तरंग, और आप आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं for the show, which is with Lalit Pandit, the legend Lalit Pandit. He is going to be with us today. आज इंडिपेंडेंस डे भी है, और इंडिपेंडेंस डे की शुरुआत के लिए और शुरुआत करने के लिए आई हैव वन सॉन्ग विच आई रियली वांट टू सिंग फॉर यू ऑल, एंड देन वी गोना start our show, that is Tea Time Talks with Tarang. एंड और आज आपको मैंने बता ही दिया है कि हमारे जो लेजेंड हैं ललित जी, ही इज़ गोइंग टू बी विद अस. सो वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे. सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्य श्यामलाम मातरम वंदे मातरम.
Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram, Vande Mataram. So happy Independence Day to all of you. May this independence bring lot of joy, lot of happiness in all the lives, in all the citizens of India, you know. And जितने लोग बाहर भी रहते हैं उनको भी बहुत बहुत हमारी इंडिपेंडेंस डे की, हमारी आज़ादी की शुभकामनाएं. बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, बेशक बुलंदियों में यकीन रखते हैं हम, मगर पाँव के नीचे जमीन रखते हैं हम. आज के हमारे जो सेलिब्रिटी हैं, ही इज अ लेजेंड हिमसेल्फ, द वन हु हैज कंपोज द बेस्ट म्यूजिकल सॉन्ग, द रोमांटिक सॉन्ग्स ऑफ ऑल टाइम, the composer of 473 songs. Oh my God, almost 5. And I think the counting is going on, you know. From Jo Jeeta Wohi Sikandar to Fanha, from DDLJ to Kuch Kuch Hota Hai, from Yes Boss to Raju Ban Gaya Gentleman, from Yara Dildara to Khiladi, Khamoshi the Musical, Fareeb, सरफरोश, गुलाम, मोहब्बतें, कभी खुशी कभी गम, एंड द लिस्ट गोज ऑन. एंड ये मुन्नी बदनाम हुई, दैट इज अ सॉन्ग विच इज ऑन द यू नो सबकी जबान पर जो है वो गाना बिल्कुल एकदम जुड़ा हुआ है. 1991 में उन्होंने अपनी जर्नी स्टार्ट करी, जो की थी फ्रॉम यारा दिलदारा से. दैट वाज द हिट सॉन्ग. आपको याद होगा वो गाना जो है, तुम ही हमारी हो मंजिल माय लव. एक्चुअली दैट इज माय फेवरेट सॉन्ग. एंड ये बात हमने बहुत बार ललित जी के साथ भी करी है, और मैं हमेशा बोलती हूँ कि ललित जी, मेरा आपके साथ हमेशा जो कनेक्शन रहा है, मुझे लगता है उस गाने से स्टार्ट हो गया है. सो Filmfare Award winner for Raju Ban Gaya Gentleman, and so many other awards which he has achieved. He has got so many number of awards in different states, in different countries. He has been on the roll from the day he has started his career. He has worked with all the legends जिनकी lyrics उन्होंने उनके काम में हमने सुनी है, चाहे वो मजरूर सुल्तानपुरी हो, चाहे गोपाल दास जी हो, चाहे आनंद बख्शी हो, समीर, जावेद अख्तर, and the singers like कुमार सानू, अमित कुमार, अभिजीत, उदित नारायण, हरिहरन, सोनू निगम, अनुराधा पौंडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, साधना सरगम, शान, बाबुल, लता जी द लेजेंड herself, आशा जी द लेजेंड, जगजीत सिंह, एंड बाला सुब्रमण्यम. They had worked with Lalit ji, so I think इतने सारे लोगों के साथ, इतने लेजेंड के साथ इन्होंने काम किया है. Himself is a legend. Let's welcome Lalit Pandit ji today with us and enjoy the whole show. So I want to call Lalit ji now here, and let me send a message to him. Just stay tuned with me. So he's gonna join, and he's gonna be with us. उन्होंने इतना काम किया है, और he is composing so many music now and for so many movies. इतने उनके albums रहे हैं, और इतने उन्होंने जो गवर्नमेंट के लिए है बहुत सारे गाने बनाए. उन्होंने श्री रविशंकर जी के साथ भी काम किया है, और श्री रविशंकर जी के लिए उन्होंने उनका एंथम बनाया है. और बहुत सारे जितने आप स्लोगन्स देखते होंगे, सो दैट हैज़ ऑल्सो बीन कंपोज्ड बाय ललित जी. एंड उनका एक गाना रहा है जो हर एक की ज़ुबान पर एक्चुअली हमेशा रहा है, जैसे ही हम बड़े होते हैं, यू नो, और जब हम अपने टीन्स में होते हैं, हम अपने कॉलेज टाइम में होते हैं, सो एक गाना ऐसा है कि वो कभी भी कोई मिस नहीं करता है. और वो गाना आई नो कौन सा हो सकता है, आप लोग मुझे लिख के बता सकते हैं कि वो गाना कौन सा है, और जो आपने कभी मिस नहीं कराया और अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी वो गाना ज़रूर गाया होगा. एंड आई नो दैट वी आर जस्ट वेटिंग फॉर ललित जी टू जॉइन राइट नाउ. They're trying to join.
सो जी हाँ, वो गाना है पहला नशा। पहला नशा है वो गाना, और दैट इज फ्रॉम द मूवी जो जीता वही सिकंदर। सो मैं गुस्ताखी करती हूँ थोड़ा सा गाने की, टिल द टाइम ललित जी इज गोइंग टू बी हियर। सो गाना है पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर दूं आसमां ज़मीं, अब यारो क्या करूं क्या नहीं। पहला नशा, पहला कुमार। यस ललित जी, वेलकम ललित जी। प्लीज हार्ट्स एंड लाइक्स अपने शेयर करते रहिए उनके लिए। एंड द लेजेंड हिमसेल्फ इज हियर विद अस। हेलो ललित जी, हाउ आर यू? Hello, Tarang. My God, you're looking so ओह थैंक यू। wonderful. आपने तो ब्लू बहुत ग्रीन अच्छी कलर का कुर्ता पहना था ललित जी, मुझे लगा यू आर इन अ होल स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस डे टुडे। हाँ, आज सुबह कहीं फ्लैग होस्टिंग थी तो वहां गया था और इसीलिए कुर्ता पैजामा पहना था, ट्रेडिशनल ड्रेस। यस, जैसा कि आपने पहना है, इतनी अच्छी बिंदी लगाई just है। because of you actually मुझे लगा let me be in a traditional dress today. अच्छा So हाउ नाइस, वेरी नाइस। welcome to the show, Lalit ji. I am so blessed to have you here on the show. You are a legend himself, and I was just talking about all the movies which you had done from the day one till the date. आपकी सारी most of the movies आपकी hit रही हैं, और आपके गाने एकदम हिट रहे हैं, चाहे वो यारा दिलदारा 1991 से लीजिए और मुन्नी बदनाम हुई यहाँ तक लीजिए। सो ललित जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत सारी मूवीज करी हैं जिसमें देशभक्ति के गाने रहे हैं। सो एक हम स्टार्टिंग करते हैं देशभक्ति के गाने से, और विच इज आपका फेवरेट रहे? टुडे इज इंडिपेंडेंस डे। हाँ बिल्कुल, आज तो आज़ादी का दिन है और मैंने देशभक्ति के कुछ गाने जरूर हैं। फना में एक गाना था, देश रंगीला, और सरफरोश का गाना बहुत हाँ जी, पॉपुलर हुआ था, जिंदगी मौत न बन जाए। और एक एक मुझे गाना बहुत पसंद है जो फिर भी दिल है हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी में का किया था हम लोगों राइट, ने। बहुत प्यारा गाना है। वो बहुत लाइट मूड का गाना है, थोड़ी मस्ती भी थी उसमें, और बहुत अच्छा जावेद साहब ने लिखा है उसको। देशभक्ति के गानों में तो इम्पोर्टेंस जो है वो उसकी लिखाई होती है, क्योंकि वो लिखना ऐसा चाहिए जिससे आपके जज्बात सही जागें। बात है, बिल्कुल। तो बहुत अच्छा लिखा था जावेद साहब ने वो गाना। और बहुत प्रसून जी ने भी बहुत अच्छा लिखा था, फना में जो हमारा गाना था बहुत खूबसूरत लिखा था। इनफैक्ट लिखाई के ऊपर ही ये गाने बनते हैं बिल्कुल सही बात है ललित जो जी, हाँ जी। देशभक्ति के होते हैं, क्योंकि राइटिंग इज मोर इम्पोर्टेंट इन दैट। और बस एकदम बताइए। ललित जी, अच्छा आपकी जर्नी एकदम स्टार्ट हुई है। मैं अभी आप बिल्कुल आपके साथ तो बहुत हमारी बातें होती हैं, और इतनी सारी चीजें आपने हमें बताई हुई है। बट जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 1991 में, बट उसमें आपने एक पहले एल्बम करी थी सबसे पहले 1991 में। सो उस एल्बम के बारे में कुछ बताएं, क्योंकि दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ योर करियर। और आपने आपने यारा जी दिलदारा से पहले करी थी एक एल्बम। सो आप उसके बारे में थोड़ा सा बताएं हाँ, एक्चुअली, बिकॉज बहुत ऑडियंस को पता भी नहीं होगा उस बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लोगों को पता नहीं होगा। और मगर देखिए, फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ आपको चांस मिलना बहुत मुश्किल होता है हाँ इनिशियली। जी, आप में टैलेंट हो तो भी लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं होता कि आपको वो चांस दें, और आपको चांस दे के वो चांस हाँ, ले कि आप कैसा करेंगे।
तो बस शुरुआत के दिन थे और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ, क्योंकि मुझसे पहले मेरे जो दोनों बड़े भाई हैं, मंधीर जतिन के नाम से हाँ संगीत देते थे, उन्होंने 15 साल स्ट्रगल किया हाँ म्यूजिक डायरेक्शन के लिए, मगर कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। और मेरा लक ऐसा रहा था कि ये सुलक्षणा दीदी के साथ मुझे इंग्लैंड जाने का पहली बार मौका हाँ मिला था। जी। मैं कॉलेज में पढ़ रहा था और वहाँ जब गया तो वो सुलक्षणा जी और रीना रॉय जी की बहुत अच्छी दोस्ती अच्छा। थी। तो रीना रॉय जी की उस टाइम शादी हुई थी मोहसिन खान के साथ। तो उन्होंने शो ऑर्गेनाइज किया था ब्रैडफोर्ड, लेस्टर और बर्मिंघम, ये इन जगहों में। तो सुलक्षणा मुझे ले गई थी और म्यूजिशियन जो थे सब इंग्लैंड के हाँ थे। जी। तो उनको कंडक्ट वगैरह करना था और मैं नया नया म्यूजिक में चला गया था। तो वहाँ ऐसा हुआ कि वो शोज तो बड़े अच्छे हो गए, मगर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हम थोड़े दिन रहेंगे इंग्लैंड में। मैं बोला मैं कुछ करना चाहता हूँ यहाँ, कुछ हो हाँ जी। हाँ देखूँ। जी। तो वहाँ कुछ अच्छे म्यूजिशियन दोस्त बन गए जो शो में ज्वाइन हुए थे। तो उनको मैं हमेशा बोलता था कि यार मेरे पास कुछ गाने हैं, हम्म। मैं उन्हें रिकॉर्ड करना चाहता हूँ यहाँ। तो एक बहुत अच्छे वहाँ दोस्त बन गए थे, हरजीत करके। तो उन्होंने बड़ी हेल्प की थी उसमें। तो उन्होंने बोला कि मैं करवाता, हम कुछ करते हैं यहाँ पे। हम्म। तो मैं बोला था लेकिन मुझे सब ब्रिटिश म्यूजिशियन चाहिए, बहुत अच्छे म्यूजिशियन हाँ। चाहिए, तो ही मैं करूँगा। तो वो म्यूजिशियंस के साथ भी सेशन हुआ और मिल गए और कोई फाइनेंसर भी मिल गया, मतलब लक वाओ। अपने आप धक्का मार रहा वाओ। था। तो वहाँ मैंने वो गाने रिकॉर्ड किए थे जो एल्बम बनी, जिसका नाम था पहला रिदमिक हाँ लव। जी बिल्कुल। तो उसमें मेरे जो बनाए हुए गाने थे, बिन तेरे सनम, हाँ चांद तारे, हाँ तुम ही हमारी मंजिल हो, हाँ। माय लव, ये 3 गाने मैंने बनाए थे, जो कि आगे चल के पिक्चर में मूवी यारा दिलदार मूवी में में। आए और जो कि बहुत बड़े हिट हाँ हुए। जी और फिर उसके बाद फिर बहुत काम मिलने लगा, क्योंकि एक बार आपको लोग पसंद करने लगे आपका काम, फिर आपको भागने की जरूरत नहीं है, आपके बिल्कुल साथ लोग बिल्कुल जुड़ जाते बिल्कुल हैं। सही बात है ललित जी। एक एक सबसे पहले बिकॉज टुडे इज इंडिपेंडेंस डे, सो आप सबसे पहले कुछ ऑडियंस को बोलना चाहेंगे इंडिपेंडेंस डे के लिए, एंड देन लेट्स स्टार्ट द शो। फिर मैं आपके साथ एक वो जो यारा दिलदारा का जो गाना है बिन तेरे सनम, फिर हम वहां से शुरुआत जरूर करेंगे। जरूर, बिल्कुल। सबसे पहले तो आपके सब अ, देखने वालों को, चाहने वालों को मेरा नमस्ते और बहुत बहुत सबको मुबारकबाद आज के आज़ादी के दिन पे। और यही कहना चाहूँगा कि हमको आज़ादी बहुत मुशक्क़त के बाद हाँ मिली है, बहुत मेहनत के बाद मिली है, और इसे हमेशा हमें संभाल के रखना है, और ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम भारत को बहुत ऊंचा लेके जाएं। जैसा कि आप जानते हैं, इस वक्त हम बहुत एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। मुश्किल दौर हमेशा आते जाते रहते हैं, मगर ये एक हमारी एकता हाँ है, जी। ये हमारा एक साथ होना जो इम्पोर्टेंट है, वो हम रहें तो हमें कोई छू नहीं कोई भी सकता। नहीं कर हमारा इतना टैलेंटेड देश है, सकते। और यहाँ के जो स्टूडेंट भी जो फॉरेन जाते हाँ हैं वो हमेशा नाम करते हैं, और हमें सुनाई देता है कि जो फॉरेन के टीचर्स होते हैं बोलते हैं जो इंडियन स्टूडेंट्स आते हैं हम्म। वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं और बहुत मेहनती होते हैं। तो हमारी एक बहुत गिफ्टेड कौम है हिंदुस्तान की, और हमें किसी से डरना और किसी बात का फिक्र नहीं करना हाँ चाहिए। जी। बस डटे अपने आप रहने से चाहिए। डटे रहना चाहिए, लगे रहना चाहिए, सब ठीक सो होगा। इसी और सबको बहुत बहुत फिर से थैंक यू मुबारक। सो मच। तो इसी बात पे एक सरफरोश का जो गाना है जिंदगी मौत ना बन जाए, 2 लाइनें आपसे सुनना चाहेंगे। गला ठीक है? आज मुझे लग रहा है थोड़ा गले में। देखिए, जितने बड़े कलाकार होते हैं ना, हाँ तरन जी। तरन जी, तो उनको बोलिए गाना सुनाइए तो सबसे पहले ऐसे ही शुरू होते हैं। मैं आज जरा माफ कीजिएगा, मेरा गला। थोड़ा गला जो है आज वो साथ नहीं दे रहा। तो वो तो कहते हैं, लेकिन आज मैं सच्ची में ही आपको कह रहा हूँ। मगर आज बड़ा अच्छा दिन है, हाँ बहुत जी हाँ जी। शुभ दिन है। तो जरूर जरूर मैं सुनाता हूँ आपको। हालांकि यहाँ डिनर का टाइम खत्म हो गया है और आपका आफ्टरनून है, और आप मुझे डिनर के बाद गाना। अब गवा रही है। जब सांस लेने की जगह सिर्फ मेरे पास इतनी बची है। हाँ, तो चलिए, ये एक बहुत अच्छे राइटर ने लिखा हुआ गाना है, इसरार अंसारी। अच्छा जी। बहुत अच्छे नए शायर हैं, और
नए शायर थे उस जमाने में, हाँ अभी भी लिखते हैं और बहुत टैलेंटेड राइटर। तो मैं मुखड़ा सुना हाँ जी देता हूँ बिल्कुल। आपको। जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो वतन, खो रहा चैनो वतन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की शमा दिल में जला लो यारो, यारो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए, संभालो यारो। वाह, बहुत ही खूबसूरत। और ये गाना मुझे लगता है कि इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है उसके ऊपर कितना ज्यादा फिट होता है। जिंदगी मौत ना बन जाए, हाँ हाँ संभालो यारो, खो आहा, रहा हाँ चैनो हाँ अमन, हाँ मुश्किलों में हाँ है वतन, संभालो है यारो। वतन। इट इज सच अ ब्यूटीफुल हाँ बिल्कुल कॉम्पोजिशन बाय यू। बहुत ही कमाल बहुत के बहुत गाने बहुत थे एक्चुअली सरफरोश के। तो थैंक सरफरोश के साथ ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखिए, कि सरफरोश में बहुत ही डिफरेंट जॉनर्स के गाने थे, बहुत ही अलग अलग तरीके के गाने थे। यू। जी जी समथिंग जी विच जी वाज बिल्कुल। योर फेवरेट, कि इस वाले गाने को बनाने में मुझे परेशानी हुई, या ये एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज जगजीत सिंह जी ने भी उसमें गाना गाया था, और हाँ हाँ मतलब हाँ बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके के गाने थे। तो आपका क्या उसमें कौन सा आपका फेवरेट गाना था देखिए, उसमें? मैं समझ गया आप क्या पूछना चाह रही हैं। देखिए, उस सरफरोश जो पिक्चर थी वो बहुत डिफरेंट पिक्चर थी। उसमें जो हीरो हीरोइन थे उनका कोई रोमांस का बहुत ज्यादा कोई एंगल दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि सब्जेक्ट ही हाँ उस जी टाइप बिल्कुल। का था। मगर ऐसी पिक्चरों में म्यूजिक अच्छा देना हाँ मुश्किल जी होता है अक्सर, क्योंकि आपके पास बहुत अलग अलग सिचुएशन होती हैं। रोमांटिक गाना अक्सर जो है ना तरंग जी, जल्दी हाँ पकड़ता जी है। हाँ जी। मगर जो ऐसे म्यूजिक होते हैं जिसमें सिचुएशनल है, जिसमें गजल है, जिसमें एक देशभक्ति का गाना है, जिसमें एक फोक हाँ गाना जी है, उसको उसको जमा के करना मुश्किल होता है थोड़ा। तो और ये तो आमिर खान की पिक्चर थी, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म थी। आमिर खान, हर खान की पिक्चर इंपॉर्टेंट होती है। जहाँ खान आ गया वहां अलर्ट हो जाना चाहिए, यहाँ बहुत अच्छा काम करना पड़ेगा। तो आमिर खान वैसे भी हाँ, इज फेवरेट अ हैं हमारे। परफेक्शनिस्ट। तो हाँ, तो इसका म्यूजिक अच्छा ही करना था। ये आमिर की भेजी हुई पिक्चर थी। इसके पहले हमने गुलाम और जो जीता वही कर ली हाँ थी, जो जी कि हाँ बहुत जी। सक्सेसफुल म्यूजिक और हिट रहा था। तो इसका म्यूजिक कर रहे थे और अलग अलग जॉनर के थे, मगर मजा इस बात का है कि इसमें पहली बार एक गजल बनाने का भी मौका मिला, जो बहुत ही प्यारे हमारे जगजीत सिंह जी ने गाया था। बहुत ही प्यार करते थे मुझे वो, और बहुत म्यूजिक को बहुत लाइक हाँ करते थे। जी तो मगर इसका सबसे जो कमर्शियली सबसे ज्यादा जो गाना हिट हुआ है, और जैसे बोलते हैं ना, एक म्यूजिक का एक हाँ इंजन जी होता है हाँ जो जी सबसे ज्यादा बिल्कुल गाना बिल्कुल। चलता है, उसके बाद बाकी भी खिंच हाँ जाते हाँ हैं। हाँ हाँ। वो मेरा गाना था, जो हाल दिल का, जो मुझे यस, बहुत बहुत ही खूब प्यारा गाना है, पसंद आया बहुत आया प्यारा था। गाना हाँ है। ओपी। हाँ, ये आमिर को भी बहुत हाँ पसंद जी था, और बहुत ही अच्छा गाना था, और पिक्चराइज भी बहुत अच्छा हाँ किया जी था हाँ जी, इस गाने को। बहुत प्यारा गाना है वो भी। तो ये गाना जो था सबसे लास्ट रिकॉर्ड हुआ था, जो मुझे याद है। और इसमें एक छोटी सी कहानी ये है कि ये जब जॉन मैथ्यूज को सुनाया हाँ था हमने गाना, तो उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था कि हाँ नहीं हाँ यार, और कुछ बनाइए। वो बहुत टीवी से आए हुए थे, हाँ तो बहुत क्विक माइंड चेंज हो जाता था हाँ उनका। हाँ हाँ तो उसमें आमिर ने हेल्प की थी। मैंने उनको फोन किया था कि भैया ये गाना मुझे अच्छा लगता है, वो डायरेक्टर ना बोल रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि ये गाना इस हाँ पिक्चर में आ हाँ जाए। तो फिर ये गाना उन्होंने अप्रूव करवाया था। हाँ मैंने हाँ कहा था कि कॉन्फिडेंट हैं, हाँ तो इनको करने दीजिए, उसमें क्या है, इफ ही सेइंग ही नोज बेटर देन हाँ एनीबॉडी हाँ एल्स अमंगस्ट अस। तो ये कहा था, और फिर ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ था तो नेचुरली
this came out to be a winner हाँ song. जी, वो बहुत ही जी खूबसूरत सा गाना है और आई थिंक बहुत ज्यादा चला भी है ये गाना। जैसे आपका यारा दिलदारा के जो गाने थे वो अभी तक जी रीमिक्स हो के वो इतने चल रहे हाँ हैं एंड पीपल आर यूजिंग इट लाइक एनीथिंग। जो आपके हाँ, फर्स्ट जी जो जी जी बिल्कुल। मूवी के गाने रहे हैं, हाँ चाहे वो हाँ जो बिल्कुल। जीता सिकंदर का पहला नशा हो और चाहे यारा दिलदारा के हो, तो यारा दिलदारा का जो एक गाना है, प्लीज एक दो लाइन उसकी और सुना दीजिए आप। बिन तेरे सर दैट इज यू नो मेरा अच्छा फेवरेट गाना है, मैं आपको कभी नहीं हाँ छोड़ती हाँ, उसके लिए। अभी 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 मैं आपको बताऊं तरंग जी, अभी 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 यहाँ से मेरा बेटा छोटा वाला अभी गया हाँ यहाँ हाँ से, और वो यही गाना मुझसे पूछ रहा था ये कैसे बजाते हैं। आप जानते हैं मैं उनको हाँ सिखा रहा हूँ हाँ गिटार हाँ इन हाँ दिनों, हाँ, क्योंकि उनके पास भी फ्री टाइम है और या मैं भी या लॉकडाउन या में या बैठा या हूँ। तो मैं सोचता हूँ एक गाना, एक इंस्ट्रूमेंट इनके हाथ में हाँ डेली। बिठा दूं मैं। हम्म। तो पियानो दोनों बजाते हैं मेरे दोनों हाँ बेटे, जी, और सब गाते हैं, मेरी बेटी भी गाती है। तो मैं ये गाना आप कर। हाँ सिखा रहा था, तो ये गाना अब भी बजा के निकला यहाँ से, ओह बिकॉज ही वाओ, सेट मी अप फॉर यू शुड हैव एवरीथिंग। बीन हियर, ही मैं सेट मी नहीं तो अप। साथ में आप लोग दोनों दोनों सुनाते। मुझे जरूर बोला कि तरंग आंटी को हेलो बोलिएगा, मगर अभी रात का वक्त हो गया यहाँ पे, यहाँ सबके कपड़े चेंज हो गए, सबके शॉर्ट्स वॉर्ट्स में हो गए और टी शर्ट ऐसा वाला है सबका, तो शर्माएंगे हाँ आने के हाँ लिए। मगर ऑफ कोर्स यू हैव मेट देम एंड यू सीन देम एवरीथिंग। तो मैं उसको बता ही रहा था कि इसको ऐसे ही हाँ बजाते हैं, जी, इसका जो तो प्लीज ललित जी सिखाता है। एक दो लाइन बिन तेरे सनम की। अरे तरंग जी, मैं तो आपका गेस्ट हूँ आज, आप जो बोलेंगे करना पड़ेगा, आप जरूर मुझे एक गाता तो हूँ। तरंग जी मत बोलो प्लीज, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं नहीं, डाइजेस्ट देखिए नहीं हो अभी रहा है। अभी हम पब्लिक फोरम में हैं, आप आपको बिल्कुल मैं तरंग जी ही बोलूंगा आज, क्योंकि आपके फैंस देख रहे हैं। वैसे हमारी दोस्ती बहुत अच्छी है, आप मेरी वाइफ को बहुत अच्छे से जानते हैं, हम आपस में मजाक भी बहुत करते हैं, मगर आज का दिन थोड़ा सा अच्छा अलग है। ठीक है, uh, I गिटार kept it here। या प्लीज। गिटार लेना ही पड़ेगा अब तो। बिना गिटार के यू आर अ रॉक स्टार ललित जी, आप गिटार हम्म, डिंग डिंग डिंग। अच्छा अच्छा, हाँ जी, कैन वी स्विच दैट ऑफ प्लीज। तो मैं उसको ये बता रहा था, हाँ जो हाँ हाँ हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। बट उसके पता लिरिक्स नहीं आपको डिफरेंट ये थी ना दिखे। ललित जी, आपने मुझे बताया था पहले कुछ और लिरिक्स थी या कुछ। अभी आपको मैंने तो काफी चीजें बता दी है, अब मैं इस गाने को जो जैसा था वैसा बजाता हूँ। हाँ तो चलिए। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। ओ आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। बिन तेरे सनम मर मिटेंगे हम, आ मेरी जिंदगी। हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। हो तुम हो मेरे तो अब है मौसम गुलाम अपना, शबनम ने लिख दिया है फूलों पे नाम अपना। ए मेरे हंसी अब न जा कहीं, आ मेरी जिंदगी। हो आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। आना ही पड़ा सजना, जालिम है दिल की लगी। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग और आई थिंक बहुत लोगों का ये फेवरेट सॉन्ग रहा होगा। और जी 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 बिल्कुल। साथ में पहला नशा जो गाना है, मतलब वो भी इतने लोगों का फेवरेट रहा है। ये गाना मुझे लगता है जैसे हाँ कोई हाँ टीन एज में आता है, तो ये दो गाने हाँ हाँ तीन गाने ऐसे हैं कि इनके बिना जी वो जी आगे पार ही नहीं कर पाते। so जी what was there in your mind, आपने ये गाने क्या सोच के बनाए और कैसे इतने खूबसूरत गाने बनाए ललित जी। दिस इज अ मिस्ट्री, मतलब ऐसा लगता हाँ। है हाउ कैन somebody make such songs।
यस। देखिए, क्रिएटिविटी है। ये मैं कहूँगा कि ऐसा हमेशा ही नहीं होता कि ऐसे गाने हमेशा ही बन जाते हैं। ये लाइफ टाइम के कुछ अचीवमेंट हैं जिनमें ये गाने आ जाते हैं हम्म। और एक लैंडमार्क बन जाते हैं। पहला नशा बिल्कुल हमारे करियर का और मेरा बनाया हुआ ऐसा ही गाना है जो कि एक जिसने मायार ऐसी बना दी है उसको जिसपे फिर दोबारा अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, वो बन मुझे जाए। लगता है कि उसको कोई कुछ उसको ऊपर वाले पार का कर भी ही हाथ नहीं था। सकता है ललित जी, इतना खूबसूरत वो गाना है कि सब गाने फीके हो जाते हैं उसके सामने। बिल्कुल, बहुत एक कमाल ही बन गया और बहुत ही अच्छा लिखा हुआ है और बहुत अच्छा पिक्चराइज हुआ हुआ है। उस एक वो एक चीज जो बन जाती है, एक मुजस्समा बन जाता है, वैसा ही ये गाना है जो बन हाँ गया। जी बिल्कुल। जी तो ललित जी, राजू बन गया जेंटलमैन एक ऐसी मूवी रही है आपकी जिसके गाने बहुत डिफरेंट हैं और बड़े यू नो एक एक जैसे होता है ना, गांव का सा बच्चा है और उसके लिए आपको गाने बनाने हैं, कुछ इंस्पिरेशन भी होना चाहिए जिसमें कुछ जी मस्ती भी होनी चाहिए। So those were very different जी जी different जी kind of songs actually in Raju Ban Gaya Gentleman में। जी जी So हाँ। how was that actually? और आप वो उस मूवी के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे अपने ऑडियंस को कि how was it actually? बिल्कुल, देखिए राजू बन गया जेंटलमैन जो पिक्चर थी, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म लाइफ की हम्म। थी। मैं ये इसलिए कहूँगा क्योंकि इस पिक्चर में पहली बार हम शाहरुख को मिले थे हाँ और जी। शाहरुख दिल्ली से आए थे इस पिक्चर के लिए। और हमारी एक टीम बनी थी जिसमें जिनको मिलाने वाले और हमारे डायरेक्टर अजीज मिर्जा मिर्जा साहब थे, जिनके साथ फिर बहुत अच्छी अच्छी पिक्चरें की और बहुत ही सुपर हिट म्यूजिक जिनका रहा है, जिसमें आ जाती है चलते चलते, आ हाँ जाती जी। है फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, आ जाती है यस यस बॉस, आ बॉस। जाती है जो कि बहुत, ये सब अजीज मिर्जा साहब की पिक्चरें हैं जिनमें शाहरुख और जतिन ललित का कॉम्बिनेशन था म्यूजिक का और फिल्म हम्म। में। तो पहली बार जो शाहरुख दिल्ली से बॉम्बे आए थे वो इस फिल्म के लिए आए थे। हम्म। और फिर इसके साथ कभी हाँ कभी ना भी शुरू हुई थी बनना। हाँ तो एक टीम फॉर्म हो गई थी। एसआर के म्यूजिक रूम आते थे हाँ और म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट लेते थे, और फिर तो बाकी तो उनकी होम प्रोडक्शन हाँ थी जी। जिनमें उनको आना ही था और म्यूजिक सुनना ही था, बैठना ही था। हाँ तो एक बहुत अच्छा एसोसिएशन शुरू हुआ हाँ और बहुत सक्सेसफुल एक संगीत और अच्छी पिक्चरों का और अच्छे एक्टर का दौर शुरू हुआ। हाँ। फिर इन पिक्चरों के बाद और बड़े बड़े डायरेक्टर आए, आदित्य हाँ चोपड़ा, जी। करण जौहर, जिनके साथ शाहरुख के साथ और हाँ आगे जी काम हुआ। राइट। मगर ये जो राजू बन गया जेंटलमैन पिक्चर थी, ये पहली हाँ पिक्चर जी। थी। और ये पिक्चर हमको बिन तेरे सनम की वजह से मिली अच्छा। थी, क्योंकि लोगों ने वो गाना हाँ सुन जी लिया हाँ था। जी हाँ जी। तो वो ढूंढ रहे थे कि नए लोग कौन है हाँ हाँ जिन्होंने ये गाना दिया है। हाँ तो वो अपने आप आ गए थे। हाँ। तो और फिर बहुत मजे से काम हुआ, क्योंकि अजीज मिर्जा जो डायरेक्टर हैं वो बहुत ही अच्छे म्यूजिकल एयर के हाँ हैं। जी। बहुत अच्छा सोच है म्यूजिक की उनको, बहुत क्लासिक सोच है। हम्म। तो बड़ा अच्छा काम करने का मौका मिला और बहुत एंजॉय भी किया हाँ साथ में। जी। एक बहुत अच्छे रिश्ते भी हाँ बने उनके जी। साथ, मजा भी आता हाँ था, जी। मजाक भी करते थे और मजे मजे में काम होता था, क्योंकि जावेद अख्तर साहब भी जुड़ हाँ गए थे जी बाद हाँ में। जी हाँ जी। तो जो सेशन होते थे उसमें इतनी मस्ती होती थी और इतना अच्छा काम होता हाँ था कि एक यादगार बिल्कुल पल। पीरियड गुजरा आपके है उसमें। म्यूजिक में जी आपने बिल्कुल सही कहा कि मजे मजे में आपका सारा काम हो जाता था, लेकिन आपके जितने गाने हैं ललित जी, जी आपके गाने सारे ऐसे हैं कि जो जिनको जितनी बार सुनो उतनी बार अच्छा लगता है, उतनी बार वो नयापन नजर आता है उन गानों में, उतनी जी बार वो जी और खूबसूरत नजर आते हैं। अभी तक आजकल के जी जितने गाने आ रहे हैं ललित जी की मतलब आते हैं और चले जाते हैं, जितने जो भी आते हैं, मगर जी आपके जो जी गाने हैं, चाहे आप कोई भी जी गाना उठा लीजिए आपका, मैं वही बात कर रही हूँ कि यारा दिलदारा जो आपकी मूवी रही है वहां से लेके, और चाहे बेशक ये जो अपने मुन्नी बदनाम हुई है, ये हर एक को मुझे लगता है उसकी लिरिक्स याद होगी, हर एक को। जैसे अगर आप हम्म, एक ट्यून बजाएंगे तो पता चल जाएगा अच्छा ये जतिन ललित का गाना है और ये गाया हुआ है। सेम एज बरबंदा, जैसे बरबंदा के गाने हैं, अरे क्या जैसे बात। जैसे उनका गाना बजता है तो एकदम हमें याद आ जाती है, अच्छा ये तो
एकदम से स्टार्ट हो जाता है, किशोर कुमार और बर्बन दा की जैसे एक जोड़ी रही है। इसी जी तरीके जी जी से बिल्कुल बिल्कुल। आपके भी गाने उसी तरीके से रहे हैं कि आपने बनाए हैं, और आपके एक दो सिंगर्स हैं जिस तरह उदित नारायण जी हैं, और जैसे अभिजीत हैं, कुमार सानू है, मतलब एकदम कानों में वही सब चीजें बजने लग जाती हैं, यू नो। सो हाउ डू यू सेलेक्ट कि मेरे को इस गाने के लिए ये सिंगर लेना है? आपका कैसे वो आता था आपका कि मुझे इस गाने के लिए ये, और इतना परफेक्ट? देखिए ये तो ये तो एक्सपीरियंस की बात है। एक कंपोजर जो होते हैं वो उनका जो दिमाग होता है बहुत क्लियर होता है, गाने की स्टाइल को समझते हैं। और आपको तो पता है कि हम जो है वो एक सिंगिंग घराने से हाँ ताल्लुक जी, मैं रखते उस हैं। पे वही बात करने मेरे वाली हूँ आपसे। हाँ जी। दादाजी और चाचा जी, पिताजी बहुत महान क्लासिकल हाँ जी। हाँ संगीत जी। से रहे हैं, और हम लोग बेसिकली सिंगर्स की हाँ फैमिली जी, से हैं। मेवाती तो घराना से, सिंगिंग का मेवाती घराने से, है ना? हाँ, हम मेवाती हाँ घराना। जी। तो सिंगर्स की फैमिली से है, तो जो सिंगिंग कराने का जो पॉइंट है मेरा और जतिन का, वो एक बहुत स्ट्रांग रहा है। आपके साथ शायद जहन में ना हो, आप जितने नाम लिए हैं आपने, अभिजीत, उदित नारायण, कुमार शानू, अलका, इन सब के लाइफ के बेस्ट अवार्ड्स हमारे गानों में हाँ मिले हैं जी। उनको, ओ, ओ सिंगिंग में। वाह। तो जो सिंगर भी गाते हैं उनको उनको वो सिंसेरिटी से आते हैं कि इसमें बहुत ये लोग जोर से काम करेंगे और हमको डिलीवर करना हाँ है, नहीं हाँ तो हाँ। फंस सकते हैं। तो उस तैयारी में आते हैं, रेसल करते हैं बहुत। और ये भी दिमाग में कहीं ना कहीं रहता है कि ये जब गवाएंगे तो अवार्ड मिलने का चांसेस है। बिल्कुल सही बात है ललित हाँ। जी। और आपने बिल्कुल सही अ, कैच पकड़ा है कि जितने तो भी हाँ सिंगर्स रहे हैं, उनको बहुत अवार्ड्स मिले आपके गानों के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अवार्ड मिले हैं, और वो एक क्रेडिट है कंपोजर्स का कि कैसे गवाते हैं हम लोग इसको। और दो तीन चीजें जो लाइफ में इम्पोर्टेंस जिसको बहुत ज्यादा दिया है, वो है कि अच्छे और बड़े राइटरों के साथ काम करने का शौक हाँ था। जी। मैंने बहुत अच्छे राइटरों के साथ काम किया है, और मैंने ऐसे राइटरों के साथ किया है जिनकी बुकें मैं स्कूल में पढ़ता था। नीरज जी के साथ काम किया है, इंदिवर जी के हाँ साथ जी। काम किया है, आनंद बख्शी के साथ बहुत काम किया है, और सबसे मेरे फेवरेट राइटर मंजू हाँ सुल्तानपुरी जी, साहब के साथ बिल्कुल। काम किया है, और कतील शिफाई साहब के साथ काम किया है, और बहुत सारे राइटरों के साथ काम किया है, जावेद अख्तर साहब, गुलजार साहब। तो बहुत अच्छे अच्छे राइटरों के साथ काम करने का मौका मिला, और बहुत सीखने का हाँ जी, मिला बिल्कुल। उनको उनसे। तो जो गाने जो याद करने की बात बोलते हैं ना कि याद नहीं होते, उसमें राइटर का बड़ा हाथ बहुत। रहता है कि वो कैसे लिखते हैं। आजकल के ज़माने में राइटर 2-3 अच्छे आए हैं, हाँ मैं ऐसा हाँ नहीं कहूँगा। मुझे इरशाद कामिल पसंद है, मुझे अमिताभ भट्टाचार्य अच्छा हाँ। लिखते हैं, और भी राइटर हैं, मगर ज़्यादा करके वो डेप्थ नहीं है राइटिंग में बिल्कुल जो सही। है, जो बिल्कुल सही। जो एक पढ़ के आता हाँ। है, तो उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। और मुझे लगता है ना, जो म्यूज़िक जो चीज़ है ना तरंग, वो जो अच्छा म्यूज़िक होता है ना, वो पुराना नया नहीं हाँ होता। जी। आप जो गानों का नाम ले रहे हैं, वो मैंने गाने करीब 8-9 साल पहले हाँ बनाए हुए जी। हैं। जैसे चांद तारे जो गाना है, वो मैंने अपने कॉलेज डेज में 1986 में ओह बनाया है, वाह। और वो रिलीज हुआ है 1996 में। 10 साल हो वाह। गए, मगर वो 10 साल के बाद रिलीज हुआ हाँ था। मैंने बनाया उस हाँ टाइम था, और वो अभी तक चलता है। बिन तेरे सनम भी उन्हीं दौर का बना हुआ है हाँ गाना, मगर वो थोड़ा हाँ जल्दी हाँ आ गया। हाँ तो म्यूजिक और जतिन ललित के म्यूजिक में ये रहा है कि हमारे जो कॉन्टेम्पररीज थे उस टाइम, आनंद मिलिन, हाँ नदीम श्रवण और अनु मलिक जो भी हाँ थे, हाँ उनसे अलग होके हमारा जो म्यूजिक का सेक्शन है वो कल्ट म्यूजिक हो गया। हाँ, बिल्कुल। वो लोगों को अभी तक पसंद है, और उसका रीजन ये है कि हम लोगों ने बहुत सेलेक्टिव हाँ काम जी। किया। हम छोड़ देते थे हाँ काम जी। कि नहीं नहीं कर हाँ पाएंगे, हाँ जिससे कि काफी डायरेक्टर नाराज भी होते थे हाँ कि नहीं ये, बहुत सारे डायरेक्टर्स होते थे, हम बोलते थे हम कर नहीं पाएंगे, आपका खराब हो हाँ जाएगा हाँ म्यूजिक। तो ईगो प्रॉब्लम हो जाता था, मगर उसका लॉन्ग रन में भला ये हुआ कि जितनी पिक्चरें की हाँ है, उसका म्यूजिक का एक हाँ, स्टैंडर्ड है, बिल्कुल। जैसा आप बोलते हैं कि हर, हाँ, तो वो एक मेंटेन करना बहुत ही बड़ी बात है। हम्म। इस जो जो इंडस्ट्री है, इसमें टॉप में आप आ सकते हैं, मेहनत करके आप आ सकते हैं, बट मगर वहां अगर कंसिस्टेंट। स्टे लॉन्ग आपको करना है, वो बहुत डिफिकल्ट है। कंसिस्टेंसी वो बहुत बहुत ही मुश्किल है, डिफिकल्ट और है। आपकी जितनी मूवीज रही है वो इतनी कंसिस्टेंट रहे हैं, और सबके जितने भी मतलब जी। हर मूवी के एक डिफरेंट डिफरेंट तरीके के फ्लेवर्स होते थे, बट हर गाना बहुत सुपर्ब रहा है आपका। हाँ, तो ये एक अब लगता है कि कमाल हो गया।
मगर उसका वो होता है कि एक पैशन होता है, एक वो होता है अच्छा करने का, हाँ वो होता है, और एक क्षमता भी होती हाँ है कि समटाइम्स यू वांट टू डू वेल बट यू आर नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग दैट हाँ मच. हाँ म्यूजिक तो ऐसी चीज हाँ है. But luckily, it was God's blessing that everything I did at that time came out absolutely right, and it made the music where it eventually went. यस People are still यस listening. I see I get the accounts of where people are listening to my music and where the royalties are coming. It's coming from all over the world, and it's such a wonderful thing to see that. और इंडिया की ऑडियंस का भी आपको पता है 1.3 बिलियन तो हम यहाँ हैं, हाँ मगर वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. बिल्कुल सही बात है. तो पूरी दुनिया में, मतलब जब मेरा मुन्नी बदनाम जो गाना था, वो एक बार मैं न्यूयॉर्क में था, तो वो हर गाड़ी में बज रहा था. ओह न्यूयॉर्क में ओह आप वाओ. सोचिए, वो उस टाइप की जगह में हाँ कि वो हर जगह बज रहा था, और ऐसा लग रहा था कि हवा में म्यूजिक तैर रहा है. वो इतने लोग सुन रहे थे उसको, एक टाइम था. तो दैट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी इज रियली हार्टनिंग yes. कि हाउ दिस हैपेंस. बट आई गेस इट्स द पैशन एंड द ड्राइव टू कीप डूइंग वेल. बिल्कुल सही बात है. और आपके गानों में है भी इस तरीके का एक एक नशा जैसे होता है, वो है. आपका एक गाना रहा है, चांद तारे तोड़ लाऊं, हाँ सारी जी. दुनिया पर मैं छाऊं. मुझे लगता है कि हर कोई जिंदगी में यही चाहता है कि मैं चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं. तो 2 लाइनें प्लीज उसकी हम्म. हो जाए. एंड आई नो दैट इज योर फेवरेट सॉन्ग आल्सो, तो प्लीज प्लीज मना मत कीजिएगा. जरूर 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 हाँ भला. जी. आज तो मैं आपकी गिरफ्त में, आप जो बोलेंगे मैं कर और अभी दूंगा. रिक्वेस्ट आ रही है कि पहला नशा भी प्लीज 1-2 लाइनें गा दीजिए. तो प्लीज 1-2 नशा वो भी गा दीजिए, क्योंकि वो सबका फेवरेट है. मतलब ये 2-3 मैं कह रही हूँ ना, आपके हाँ जो हाँ गाने हैं वो सबके इतने फेवरेट गाने हैं कि कौन सा गाए और हाँ कौन हाँ सा हाँ. ना गाए. बिल्कुल बिल्कुल. तो वैसे मेरा पियानो तो यहाँ पड़ा है, और मेरा पियानिस्ट बेटा नीचे है. मैं आपको गिटार में सुना ठीक है देता हूँ. बिल्कुल. ठीक है. नहीं ऐसे पहला थोड़ा टर्न नहीं हो जाएगा कैमरा अगर हम लोग देखें. अच्छा. हो तो जाएगा. तो पियानो पियानो में आप आप चाह बहुत रही हैं अच्छा कि. बजाते हैं. जो उसकी आगे की स्टार्टिंग है ना लाइन, वो बहुत ही कमाल का बजाते हैं ललित जी. अच्छा, तो आपने तो सुन लिया, आप बाकियों को सुनाना चाह रही यस हैं. मेरे तो इतनी इतनी बार सुना हुआ, अच्छा इतना रिकॉर्डिंग कर रखी है आपकी. अच्छा. तो अब ये आप आईफोन में है, तो ये थोड़ा सा हाँ कोई हिलेगा बात तो. नहीं. और हमें जरूरत पड़ेगी एक असिस्टेंट की. जरा लाइट ऑन कर दीजिए. अब मैं जा रहा हूँ. देखिए, ये मिला है दिलवाले दुल्हनिया का, लोगों को याद होगा. अरे वाह. यस यस यस. हाँ, चलिए. एंड द फिल्म फेयर तो लेडी इज आल्सो लाइंग ये देयर ऑन द. ये मेरा पेन. यस. हाँ हाँ. And here is a lady behind who is going to handle the mic. I'm not going to show her, but Meena ji is here. You'll have to see a little so that you hold it correctly हाँ somehow. थोड़ा सा नीचे कर लीजिए मीना जी. थोड़ा सा नीचे. हाँ, थोड़ा सा नीचे नीचे कर कर लीजिए, लीजिए. थोड़ा सा डाउन. अच्छा अच्छा, ठीक है. अब मैं आपको कर देता हूँ, आप हिलिएगा मत. ठीक है यस यस करण. बिल्कुल बिल्कुल. करण और जी. प्लीज ललित जी. ओके, चलो. तो पहला कौन सा सुनेंगी करण? चांद तारे सुना दीजिए, या पहला नशा, कोई भी. एनीथिंग एनीथिंग. पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर योर अच्छा, सॉन्ग्स एक्चुअली. सब लोग को लग रहा ठीक है है कि ठीक है ठीक है. I won't take a long time, so that okay. So here goes. ऑक्यूपाई कर लेते हैं. जो भी चाहूं वो मैं चाहूं, जिंदगी में जीत जाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है. चांद तारे तोड़ लाऊं, सारी दुनिया पर मैं छाऊं, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है.
यार तू भी सुन जरा, आरज़ू मेरी है क्या, मैं क्या बन जाना चाहता हूँ। मैं कहाँ खराब हूँ, मैं तो लाजवाब हूँ, मैं ये मनवाना चाहता हूँ। ए मान जा ए खुदा, इतनी सी है दुआ, मैं ज्यादा नहीं मांगता, मैं ज्यादा नहीं मांगता। सारी दौलत, सारी ताकत, सारी दुनिया पर हुकूमत, बस इतना सा ख्वाब है, बस इतना सा ख्वाब है। अमेजिंग, दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग। आपका बहुत ही प्यारा गाना है और बहुत ही प्यारा कंपोज भी किया है आपने। एक दो लाइन पहला नशा की और कर लेते हैं एंड देन आप फिर से वापस लगा लीजिएगा चाहे स्टैंड पे, बिकॉज मीना जी भी थक जाएंगी। नहीं नहीं, मीना भी मुस्कुरा रही है। मजा आ रहा है उसको। सो पहला अच्छा चलिए नशा जल्दी की से पहला नशा हाँ का थोड़ा हाँ सुना जी, देता हाँ हूँ। जी हाँ हाँ, मीना जी, इसके बाद ओह आप शिट लगा मत। लीजिएगा हाँ, स्टैंड पे। वन, हम्म। अच्छा। पहला नशा, पहला खुमार, नया प्यार है, नया इंतजार, कर लूं मैं क्या अपना हाल, है दिले बेकरार, मेरे दिले बेकरार, तू ही बता। पहला नशा, पहला खुमार, उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में कहीं, या मैं झूल जाऊं इन घटाओं में कहीं, एक कर लूं आसमां और जमीन। कहो यारो क्या करूं क्या नहीं, पहला नशा, पहला खुमार। माय गॉड, मुझे लगता है ये सब लोग आज बहुत खुश हो गए होंगे सुन के। एकदम लाइव आपने एकदम प्यारा गाया है ललित जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। Thank you, thank you. I hope your listeners and your fans, people who follow you so much, are enjoying the day today of our conversing together. सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं। I hope एक दो सबको कोई बोल मजा। रहे हैं अच्छा कि अच्छा, एक्चुअली मेरी मॉम ही है एंड शी वांट्स यू टू सिंग वन देशभक्ति का अच्छा, गाना। मॉम को नमस्ते मेरा बहुत। So she wanted to listen your one देशभक्ति का गाना, बट उससे पहले मैं ललित जी आपसे और अपने सारे एक्चुअली व्यूअर्स से बताना चाहती हूँ कि ललित जी इज फ्रॉम अ घराना, घराना जो बहुत बड़े घराने रहे हैं। 3 या 4 घराने हैं एक्चुअली, 5 हैं, 5 घराने घराने बहुत हैं बड़े, उनमें से। हिंदुस्तान के हाँ क्लासिकल जी, घराने। सो उन 5 घरानों में से एक घराना ललित जी का भी है। सो ललित जी के जो पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, दे ऑल हैव बीन वेरी बिग सिंगर्स, और आप सब लोग जानते भी होंगे कि जी जी पंडित जसराज जी भी आपके चाचा जी हैं, एंड पंडित आई एम सॉरी मैं नाम एक्चुअली, प्रताप हाँ नारायण प्रताप मेरे नारायण पिताजी जी, हैं। और उनके पिताजी थे हाँ, एंड पिताजी हाँ गुरु जी। हम सबके, सो मैंने हाँ सीखा ही जी, उन्हीं से तो है। थोड़ा सा उस बारे में बताइए, बिकॉज आजकल के लोगों को पता ही नहीं है घरानों के बारे में कि घराने क्या होते हैं, तो आई थिंक पता होना चाहिए। देखिए, ट्रेडिशनल घराने हैं हिंदुस्तान में, बहुत ही क्लासिकल के जो डीप म्यूजिक के हैं, हाँ लोग जी, वो किसी न किसी घराने से ताल्लुक रखते हैं, वहां से हाँ सीखते हैं। जी, आप बेशक उस ब्लड लाइन के ना हो, मगर आप अगर उनसे सीख भी लिए तो आप उस घराने के हो जाते अच्छा, हैं।
हाँ, तो हम तो वो मतलब फिफ्थ जनरेशन है आर्टिस्टों की, जो म्यूजिक में ही काम करते हैं। तो इनफैक्ट जतिन और मैं और हम पहले हैं इनमें से जो कि सिंगिंग में ना जाके जिन्होंने कंपोजिशन की तरफ डाइवर्ट हाँ किया। जी। और मगर इससे इससे भी हमारे जो पिताजी थे, जो हमारे गुरु हैं, जिन्होंने सिखाया है हमको, वो इससे भी खुश थे क्योंकि वो क्योंकि काम तो म्यूजिक में ही म्यूजिक। किया। मेरे चाचा हाँ ने जी। कहा था उनसे कि भैया, अगर ये गाना नहीं गा रहे हैं मगर ये बना तो रहे हैं, नाम तो म्यूजिक में ही कर हाँ रहे हैं। तो उससे उनको तसल्ली हाँ हुई थी, हाँ हालांकि वो चाहते थे हम गवैये हाँ बने। हाँ मगर जनरेशन चेंज होती है, अभी जो अ, अ, हमारे जो आगे के बच्चे हैं वो अलग टाइप का म्यूजिक करते हैं, अलग टाइप का सीखना है हाँ उनका। जी। मगर हाँ, क्योंकि ब्लड में ही म्यूजिक है, तो एक इंटरेस्ट और एक मजा लेने का उसका एक इफेक्ट जो है हम लोगों में वो हाँ अलग होता है। हाँ तो देखिए, अगर आप इवन इफ यू आर अ पर्सन बिलोंगिंग फ्रॉम अ म्यूजिक फैमिली, ये तो जरूरी है कि आपको सीखना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी हाँ पड़ेगी या उसमें, और आपको बहुत लगन से काम करना पड़ेगा, क्योंकि म्यूजिक है एक मुश्किल चीज और एक ऐसी चीज है जैसे हर कला का एक अनंत हाँ होती है। आप सीख नहीं सकते पूरा, आप अपने हिसाब से उसका अंदाज बदल सकते हम्म, हैं। आप और जितना सीखेंगे उतना आपको नजर आएगा कि और एरिया बाकी है हाँ जी सीखने हाँ का। जी बिल्कुल। तो म्यूजिक तो जिंदगी भर सीखना हाँ चाहिए। जी कला ही ऐसी है, और मजा भी आता है सीखने का। जब तक सीखते रहे आदमी तो एक एडवेंचर रहता है लाइफ में कि अरे वो एक नई चीज सीखी, तो मजा भी आता है। और एक बार सक्सेसफुल हो जाए और कुछ कर ले उसमें, तो फिर एक जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन हाँ मिलता है, जी जो लोगों से इज्जत मिलती है, जो प्यार मिलता है, वो तो प्राइसलेस है। वो तो बिल्कुल आपको किसी कीमत में आप खरीद नहीं सकते बिल्कुल बिल्कुल सही उसको, बात। उस प्यार को, उस इज्जत को। तो उसका एक अलग रस है, उसका एक अलग मजा है, और कलाकार उसमें बहुत वो उससे एनर्जी आती है हाँ उनमें, जी मुझे हाँ तो। जी हाँ जी। तो सो आई थिंक एक घराने के साथ जुड़ना बहुत इम्पोर्टेंट है, और उसी से आप सीखते भी हो। सो जितने भी सिंगर्स हैं वो कहीं ना किसी घराने के साथ जुड़े हुए हैं, और दिस इज हाउ यू ग्रो। सो ललित जी, आपने बहुत बड़े बड़े जो है वो लेजेंड्स के साथ काम किया है, जैसे आशा जी हैं, और लता जी हैं, और जी। साथ में आनंद बख्शी जी आपने बोले, मजरूर सुल्तानपुरी जी हैं। सो आशा जी के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि डीडी अजय के मुझे लगता है बहुत गाने आशा जी ने गाए हैं, और हाउ वाज द एक्सपीरियंस, बिकॉज आप तो उस समय बहुत छोटे होंगे और आशा जी तो ऑलरेडी काफी बड़ी रही होंगी, एंड तो हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, वो आपको बच्चा बच्चा समझती थी या कैसे आप करते थे और कैसे हैंडल करते थे, बिकॉज दैट इज आल्सो समथिंग लाइक हाँ। देखिए, हमारे बहुत ही पुराने रिलेशन रहे हैं मंगेशकर हाँ फैमिली से। जी इनफैक्ट मैं आपको एक खुशखबरी बताऊं कि परसों आज लता जी का फोन आया हाँ था। जी हाँ जी और बहुत दिन से आप हम सब जानते हैं कि दीदी की थोड़ी तबीयत 19-20 रह रही थी, तो डिस्टर्ब भी नहीं कर रहे थे क्योंकि उनकी तबीयत अच्छी हाँ हो जी जाए। मगर कल परसों उनसे बात हुई, उनका फोन आया और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी पिक्चर देख रही हूँ, हाँ। जब प्यार किसी से होता अच्छा। है। उसमें सारे गाने दीदी ने हाँ गाए हाँ हैं, और उनको म्यूजिक बहुत पसंद है। हाँ तो बोले कितना अच्छा काम किया है, कितना अच्छा बनाया है। तो मैं बोला दीदी, कितनी खुशी होती है कि आप बोलते हैं कि अच्छा काम किया है। बोलते हैं अच्छा काम किया है, अच्छा लगता है सुनने को, इसीलिए कहती हाँ हूँ। हाँ और बहुत अच्छी अच्छी बात की। मैं आपको बताऊं कि लता जी, आशा जी, किशोर दा, पंचम दा, हाँ हाँ इनके साथ बहुत बचपन में काम करने का मौका मिला था हमको। हम बच्चों के गाने गाते थे उनके। और लता जी ने जब पिताजी हैं मेरे, वो हृदय नाथ जी को सिखाते थे। अच्छा। ओके। तो जब मैं बहुत ही छोटा था, मुझे तो याद हाँ भी नहीं, हाँ मगर लता जी, आशा जी बताते हैं कि हम पूरी फैमिली घर जाती थी और वहीं खाना खाते हाँ थे, वहीं सो जाते थे। हाँ। कोई यहाँ सोया है, कोई वहां सोया है। परसों भी लता जी ने इस बात का जिक्र किया। अच्छा। तो उन्होंने तो हमको बचपन से देखा हाँ। है, और मुझे तो इतना छोटा देखा है कि मुझे याद भी नहीं ओह है सच्ची। वाओ। मगर उनको याद है, हाँ उनकी याददाश्त दोनों बहनों की, मैं बोलता हाँ हूँ कि गजब है। हाँ उनका तो एक एक गाना याद है उनको। हाँ
तो इस बात वो बोल रही थी कि आप लोग तो हमारे कितने पुराने रिलेशन है, हाँ, आप लोग पिताजी के साथ आते थे और पिताजी की भी बहुत बहुत प्यार से याद करती हैं, उनको याद हाँ करती हैं हाँ पिताजी। हाँ और हृदयनाथ जी को भी बहुत पसंद थे, वो सीखते थे पिताजी से मेरे, और वो खुद बोलते हैं कि वो मेरे गुरु हैं। तो ये तो बहुत एक हृदयनाथ जी के तो मैं फैन हूँ, इतने जोरदार वो हाँ कंपोजर हैं। जी उनकी जो कॉम्पोजिशन है वो इतनी मुश्किल है और इतनी डीप है कि वो बहुत हाँ गहरे इंसान है। और तो लता जी जब हम लोग काम कर रहे थे साथ में तो उनको बहुत खुशी हो रही थी कि उन्होंने हमको एकदम बच्चा सिखाया, और वो देख रहे हैं कि काम कर रहे हैं और ऐसा काम कर रहे हैं जो उनको भी अच्छा लग रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि लता जी ने, आशा जी ने कितना काम किया और क्या काम किया है इन्होंने, कोई उनके आसपास भी फटक भी नहीं सकता। ना कभी ऐसा था ना कभी ऐसा होगा जैसी लता जी है। मैं तो इस बात को बहुत मानता हूँ, और उनका थोड़ा भी अप्रिसिएशन कर लेना बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि वो नहीं हाँ करती। जी और मुझे बहुत बहुत प्यार करती हैं और मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ इस मामले में। हाँ तो और लता जी को ये जो लास्ट का डेकेड है जिसमें उन्होंने काम किया, वो सबसे ज्यादा हमारे हाँ गाने में जी बिल्कुल हाँ गाती जी नहीं है हाँ वो। जी हाँ हाँ, उनको कुछ भी बोलो तो ना कर देती हैं, हाँ वो गाती नहीं, मगर उनको मजा जिनके साथ आया उनके साथ ट्यूनिंग हो जानी चाहिए। तो मैं तो मजाक भी करता हूँ बहुत, बेटे जैसा हूँ उनका, और बहुत प्यार करती है, हमारी सारी फैमिली हाँ बहुत प्यार करती है उनको। तो एक अच्छे रिलेशन का, और उनको खुशी होती है कि ये इतना अच्छा हाँ काम किया। हाँ तो आशा जी का आपने कहा कि बहुत गाने गाए, आशा जी ने दिलवाले में सिर्फ एक गाना गाया अच्छा एक्चुअली, लता जी ने सारे गाने अच्छा गाए। और जब हम लोग गवा रहे थे तो बड़ा डर रहे थे, क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं, दिलवाले दुल्हनिया मिलने में आशा जी का बड़ा हाथ है। अच्छा उन्होंने यश चोपड़ा जी से बात की हाँ थी कि भाई ये दो लड़के हैं, आप इनको सुनिए, बहुत टैलेंटेड हैं। क्योंकि उनको हमने गवाया था, राजू बन गया जेंटलमैन में गवाया था, खिलाड़ी हाँ में हाँ गवाया था। तो पसंद करती थी, और बचपन से जानती हैं तो नेचुरली वो हाँ सपोर्ट था उनका। तो इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, पंचम दा गुजर गए थे तो हम पंचम दा के घर पे गए थे दोनों भाई। तो आशा जी बैठी हुई थी और हमने अपने उनके चलो पैर पड़े हमने उनको, और बहुत बोला कि बहुत दुख हुआ दादा नहीं रहे। तो वो बहुत मूड तो खराब था, मगर उसी टाइम उन्होंने बात की हाँ कि तुम लोग क्या कर रहे हो अब आजकल, क्या कर रहे हो। हमने बोले इतनी इतनी पिक्चरें कर रहे हैं आशु जी, अच्छा चल रहा है हमारा। हाँ तो उन्होंने कहा यश चोपड़ा के साथ काम किया है। तो हमने कहा नहीं, हम मिले हैं लेकिन काम नहीं किया। तो उन्होंने वहीं से पंचम दा के घर से फोन किया था। अच्छा हाँ, यश जी को, और उनसे बात की और कहा इनसे मिलिए, लड़कों को सुनिए, बहुत टैलेंटेड है। हम्म। और वहां से ही बात बनी है दिलवाले की। तो हमारी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आशा जी को गवाना है, मगर सारे गाने लता जी गा दिए। और सब आशा दीदी को सब खबर थी कि सब आशा जी सोच लता नहीं जी रही गा रही होंगी हैं। कि ये तो मतलब दिलवाई तो मैंने हाँ, मूवी है तो चलेंगे जैसे नहीं ही वो गाने आई, जरा सा झूम लूं जब गाने आई, हाँ तो आते ही बोली क्यों सारे गाने हो गए तुम्हारे, अब मुझे भैया बुला रहे हो। तो हम तो बहुत शर्मिंदा हो गए थे, मगर वो तो इतनी चीज ग्रेट लेडी, सब जानती हैं कि क्या है। तो बहुत अच्छा गा के, बहुत ही इतना खूबसूरत माहौल होता हाँ था आशा जी को गवाने का कि, और सिंसियरिटी इतनी है। ये लोग अलग स्कूल के हाँ हैं, इनके अलग रही है स्कूलिंग। ये रिहर्सल करते हैं, बहुत हाँ कोशिश करते हैं देखने की कि कंपोजर के दिमाग में क्या है, क्या बोल रहा है। हाँ और बहुत ही, जब आ जाती है काम करने में तो वो हिला ही देती हैं, इसमें तो कोई शक oh god नहीं। I'm just thinking of the scene कि क्या सा सीन हाँ रहा होगा हाँ, वो आई एकदम ऐसा करके, क्यों सारे गाने हो गए, अब मेरी याद आई है। अच्छा, गाए भी सब लता जी ने, तो हम वैसे भी कुछ नहीं बोल सकते, तो उनको सब पता था कि हाँ इन्होंने गाने कर लिए हैं सब। मगर फिर बहुत बहुत ही प्यार करते थे, तो ओ ये उनके लिए क्या है। आपका लेकिन रिलेशनशिप जो है वो पंचम दा के साथ बहुत ज्यादा रहा है आपने उनके स्टूडियो में और उनके बैंड्स के साथ भी बहुत ज्यादा काम किया है सो हाउ वाज दैट एक्चुअली जब आप आपका इनिशियल डेज में जब आप जाते थे स्टूडियो में सो यू वर जस्ट टेलिंग जी, अबाउट कि हम लोग पंचम दा का ही वो स्टूडियो होता था या कुछ कुछ एरिया था कहीं आप जाते थे सो व्हाट वाज दैट एक्चुअली वो भी मुझे लगता है कि ये दीज थिंग्स दैट यू डोंट गेट टू हियर एंड नो जी, जी, जी। एनीवेयर सो दैट इज व्हाई आई एम टॉकिंग आप बोल रहे होंगे सब मेरे सीक्रेट्स निकाल नहीं नहीं, उसमें सीक्रेट क्या है, तो सब बहुत अच्छी बातें हैं, लोगों को पता हाँ हो नहीं जी सकता। पंचम दास जो थे, वो फिल्म सेंटर में रिकॉर्ड करते थे, तारदेव में हाँ जी हाँ स्टूडियो था जहाँ जहाँ वो प्रेफर करते थे रिकॉर्डिंग। और
हमारी जो इनिशियल पिक्चरें रही है, जो जीता, कभी हाँ कभी ना, राजू बन गया जेंटलमैन, कई सारी हाँ फिल्में जी। वो हमने फिल्म सेंटर हाँ में की हाँ है। हाँ। तो पंचमदा भी उस स्टूडियो को प्रेफर करते थे, हम भी उसी स्टूडियो में करना चाहते थे, क्योंकि द साउंड क्वालिटी जो है वहाँ की एक अलग सी थी, हम्म। और बड़ा क्लीन रिकॉर्ड करने का शौक था मुझे कि सब बड़ा अच्छा क्लीन रिकॉर्ड हो, साउंड जंबल ना हो। तो पंचमदा से वहाँ पे, क्योंकि स्टूडियो शेयर करते थे तो मुलाकात होती थी, वो पूछते थे कैसा लग रहा है यहाँ पे, हमको जो प्रॉब्लम लगती थी उनसे बात कर सकते थे हम, क्योंकि हमको बचपन से जानते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, पंचमदा से एक बार पूछा था कि भाई आपको ये नए जनरेशन में क्या लगता है, कौन से म्यूजिशियन म्यूजिक डायरेक्टर्स में लगता है आपको कि कोई टैलेंट है। तो उन्होंने हमारा नाम लिया था, कहा था ये दो नए लड़कों में मुझे बात नजर अरे आती है वाह, वेरी कि अच्छा नाइस, काम कर वेरी सकते हैं। नाइस। उन्होंने एक गाना सुना था, लवेरिया हाँ हमारा, हाँ हाँ, सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ। वो गाना, हाँ वो गाना सुन के गाड़ी रोक दी थी और सुना था, और अपने असिस्टेंट से पूछा ये किसका हाँ गाना है। हाँ तो मनोरी मनोरी सिंह थे जो हमारे भी असिस्टेंट थे, बहुत मेरे सारे गाने बजाए हैं हाँ उन्होंने। तो उन्होंने कहा ये वो नए लड़के हैं जतिन ललित, बहुत अच्छा हाँ काम कर हाँ रहे हैं। तो खुश हुए थे, अच्छा ये वही लड़के हैं, अच्छा। तो बात होती थी, फिर नासिर साहब ने पूरा गाना, नासिर साहब के तो आप रिलेशन हाँ जानते जी। हैं कि पंचमदा के साथ कैसे थे। तो उनको नासिर साहब ने, जब पूरा म्यूजिक खत्म हो गया था जो जीता का, तो उन्होंने घर पे नासिर साहब ने इनवाइट किया था पंचमदा को, सारे गाने सुनाए थे, और पंचमदा से पूछा था क्या लग हाँ रहा है हाँ इसमें हाँ जीता। तो दादा ने तारीफ की थी गानों की, उनको रूठ कर हमसे बहुत पसंद हाँ, आया था, बहुत पहला प्यारा नशा गाना, बहुत बहुत पसंद आया प्यारा था, गाना। हाँ। और उनको पूरा म्यूजिक हाँ अच्छा लगा था, बोला था कि बहुत अच्छा हाँ काम किया। तो नासिर साहब ने हमको बताया था कि पंचम को मैंने म्यूजिक सुना और म्यूजिक की तारीफ हाँ की है पंचम ने। हाँ, इतना कह देना ही बहुत बड़ी बहुत। बात है, क्योंकि वो गुरु लोग था। तो बस ये सब बड़े बड़े सर्टिफिकेट है मेरे पास, देखिए। यू योरसेल्फ इज अ लेजेंड। जी। और हम लोग तो एक्चुअली बड़े हुए हैं आप लोग के गाने, मतलब ऐसे आप आपने बहुत बचपन बिल्कुल। से एक्चुअली गाने बनाने शुरू करे, तो that is why हम बड़े हुए हैं, जी। हमारी जो जनरेशन है उसने आप हाँ ही के जरूर गाने जरूर, सुने हैं। बिल्कुल। और आप ही के बिल्कुल। गाने मतलब को अपनी अपनी लाइफ में बसाया है एक्चुअली। चाहे वो अपना करियर हो, हाँ हाँ। और चाहे अपनी लाइफ हो, और चाहे वो अपना फर्स्ट रोमांस हो, तो सबका साथ वो ही रहा है एक्चुअली। सो आपने जी। एक्चुअली 1993 में एक अशांत मूवी करी थी जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था, जिसे कन्नड़ा में भी, हिंदी और कन्नड़ा और हिंदी दोनों में आपका आपको उसको नॉमिनेट किया था, और शायद अवार्ड भी मिला था। या जी। सो हाँ हाँ। व्हाट वाज दैट एक्चुअली? आपने दूसरी लैंग्वेजेस में भी ललित जी कहीं पे काम किया है? कौन कौन सी मूवीज में आपका रहा है? देखिए ऐसी पिक्चरें रही है जो कि दो लैंग्वेज में बनी हम्म। हैं। एक हमारी पिक्चर थी अक्षय कुमार के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट वाज विष्णुवर्धन थे हाँ उसमें। जी। वो साउथ के एक्टर थे, बेंगलोर के बहुत बड़े थे। वहाँ पे उसकी सारी रिकॉर्डिंग भी हमने साउथ हाँ में की जी। थी, और अक्षय और उन्होंने साथ में पिक्चर की थी, वो एक थी। और एक पिक्चर थी, मैं नाम भूल जाता हूँ, मेरे ख्याल से पांडव पिक्चर थी। केशु राम से प्रोड्यूसर्स हाँ जी। हाँ थे जी। उनके, उन्होंने मतलब साउथ और हिंदी दोनों में हाँ बनाई जी। थी पिक्चर। और बायलैंग्वेज पिक्चरें की है हमने, आशान जैसे कि आप कह रहे हैं, हाँ दो लैंग्वेज में बनी। और बंगाली पिक्चर हमने की, क्योंकि बंगाल जो लैंग्वेज है वो जतिन को आती है, वो कलकत्ता में पैदा हुए हैं। तो रानी मुखर्जी की एक पहली पिक्चर जो हाँ थी जी। वो बंगाली फिल्म थी, अच्छा बियर फूल। अच्छा। उसका हमारा म्यूजिक सुपर हिट था। वो पिक्चर रानी के फादर ने बनाई हाँ, थी, और बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट हुई थी बंगाल में। तो फिर मैंने एक सोलो पिक्चर भी की थी रानी के भाई के साथ, राजा मुखर्जी के हम्म। साथ, बंगाली अच्छा, में। मुझे बंगाली नहीं आती, मगर म्यूजिक तो सेम है, म्यूजिक तो सेम लैंग्वेज है, हाँ। सब जगह सेम है, हाँ। तो जो सिंगर्स थे वो सब जानते हैं, हाँ अलका हाँ जानती है बंगाली, अभिजीत भट्टाचार्य बंगाली है, शान बंगाली है। तो ये सब ने हेल्प की थी, असिस्ट की थी, आप मुझे हाँ म्यूजिक कर दिया था, बहुत अच्छा म्यूजिक था उसका हाँ, भी। तो ऐसे अलग अलग लैंग्वेज लैंग्वेजेस में में, करने का अच्छा। मौका। बिकॉज हाँ। हम लोग अगर अभी मैं अभी मैं कर रहा हूँ एक पिक्चर जो कि गुजराती और हिंदी दोनों में बनी अच्छा है, पहली बार गुजराती में कर रहा हूँ, अच्छा, हाँ।
चलिए, we will all look हाँ forward to it actually, ललित जी। और आपको अवार्ड्स तो इतने मिले हुए हैं, और एवरीबडी कैन सी कि पीछे इतने सारे अवार्ड्स लगे हुए हैं आपके। सो जी जी कोई एक ऐसा, फिल्म फेयर के साथ, आपको फिल्म फेयर तो कुछ कुछ होता के लिए मिला, हम्म, पर फिल्म कुछ कुछ होता को तो मुझे जी से अवार्ड भी मिला है, साथ में बॉलीवुड का भी अवार्ड मिला है, और साथ में आपको स्क्रीन स्क्रीन मिला है। मिला है। स्क्रीन बहुत बड़ा अवार्ड है। हाँ, हाँ बहुत सारे उसके अवार्ड मिले तो हैं। सो हाउ हाँ वाज दैट एक्चुअली, क्योंकि जी जी कुछ कुछ होता में भी हर तरह के गाने थे। कुछ कुछ होता में एक बबली टाइप के गाने थे जो शैतानी वाले टाइप के थे, कुछ एक सैड सॉन्ग था, साथ में फिर देन रोमांटिक सॉन्ग्स थे। सो ऑल वर डिफरेंट डिफरेंट जी जी जॉनर ऑफ जी। सॉन्ग्स। तो है ना, कुछ कुछ होता है, वो ह्यूज म्यूजिकल फिल्म, मतलब हाँ म्यूजिक का इतना क्रिएट की थी हाँ सिचुएशन, दे वर बैंकिंग हाँ ऑन गुड हाँ म्यूजिक। और म्यूजिक का मैं आपको बता दूं कि दिलवाले के बाद, दिलवाले में करण जो थे वो आदित्य को असिस्ट कर रहे थे एज हाँ डायरेक्टर। जी। और जब ये पिक्चर कुछ कुछ होता है, जब सेटअप हो रही थी, इसके जो प्री प्रोडक्शन की प्लानिंग हो रही थी, तो हमको इसके लिए बुलाया आदित्य चोपड़ा ने हाँ था। हाँ उन्होंने कहा कि देखो, करण ने बहुत अच्छा स्टोरी लिखी है पिक्चर की, और बहुत ही अच्छा म्यूजिक होना चाहिए, इतनी अच्छी हाँ पिक्चर हाँ। है उसमें। तो तुम लोग कितने बिजी हो बताओ, काम कर हम्म पाओगे, इतना आप टाइम दे हम्म, पाओगे? तो हमने पूछा भाई कास्टिंग क्या है हाँ उसकी, तो बोला शाहरुख और काजोल। तो वो तो हमारे लकी स्टार थे, हाँ उनको हाँ तो हमेशा हाँ ही हिट होती थी। तो हम लोग ने बोला नहीं, एकदम फ्री है, करेंगे एकदम बिल्कुल। हाँ। तो उस टाइम दिलवाले को सिर्फ बेस्ट सॉन्ग ऑफ द ईयर फिल्म फेयर मिला था। हाँ और यश यश आनंद बख्शी को मिल गए थे अवार्ड, हम लोगों को नहीं हाँ मिला था उसमें। तो मतलब एमटीवी अवार्ड मिला था एक, और अभी बल्कि मिल जाते हैं दिलवाले के हाँ। अवार्ड, क्योंकि अब इतनी बड़ी 25 जगह। इयर्स हो अब गए तो हैं। बीबीसी ने, हाँ, अब तो बीबीसी ने भी डीडीएलजे को डिक्लेयर कर दिया है एज द बेस्ट म्यूजिकल फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा वाह एवर। ये सर्टिफाई करके वाह, उन्होंने भेजा है कंग्रेचुलेशंस कि ललित जी। पीपल हैव वोटेड इन मिलियंस दैट हाँ दिलवाले दुल्हनिया इज द बेस्ट म्यूजिक। तो इट हैज गॉन टू अ डिफरेंट लेवल, इट्स द लॉन्गेस्ट रनिंग फिल्म इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। तो बहुत सारी चीजें अटैच है उसके साथ। मगर उस टाइम बड़ा दुख हो गया था कि अरे यार, इतना अच्छा करने के बाद भी नहीं मिला। लता जी को भी लगा था कि ये क्या हो हाँ। गया, ऐसा कैसे कर लेते, मगर हो जाता है, वो अलग एक पॉलिटिक्स की बात है। मगर ये जो पिक्चर आई थी, इसमें मैंने बहुत वो किया था कि इसमें कुछ ऐसा म्यूजिक देना है, क्योंकि लोग बोल भी रहे थे यश चोपड़ा का म्यूजिक था यार, इसीलिए कर लिया होगा। पॉलिटिक्स बहुत होती है हमारी हाँ इंडस्ट्री में, आप जानते हैं, अभी देख ही रहे हैं आप ओ क्या क्या हो रहा gosh। है। तो जब कुछ कुछ होता है हो रही थी, तो मैंने डिसाइड किया था कि उसको दिलवाले तक ले हाँ जाऊंगा, इतना इतना अच्छा करूंगा। हाँ। और बहुत मेहनत की थी। और बैकग्राउंड भी फर्स्ट टाइम हम लोग नॉमिनेट हुए, तो बैकग्राउंड का भी अवार्ड मिला अच्छा। हमको, कुछ कुछ होता है का। और बहुत मेहनत की थी मैंने कुछ कुछ होता है में, मुझे बहुत मजा आया था करण के साथ हाँ काम करने में। हाँ। बहुत ही पैशनेट थे। और बहुत ऐसा, जो जब डायरेक्टर खुद बहुत मेहनत कर लेना, तो पूरी टीम बहुत मेहनत वही, करती है उसको जब जस्टिफाई लीडर करता करने के है लिए कि टाइम, नहीं। तो सब हाँ, वो लोग, एक हाँ बात बहुत बिल्कुल बड़ी सही बात इंपॉर्टेंट है। है। और करण ने नरेशन ही ऐसा दिया था कि पूरी पिक्चर दिखा दी हम्म, थी, जब नरेट किया था तो समझ गया था कि बहुत अच्छी बनेंगे। हाँ। उसका कोई गाना हो जाए एनीवे, ललित जी, एक साथ साथ एक और गा लीजिए, और फिर उसके बाद हम एक देशभक्ति का और गाएंगे। अच्छा आप देखिए, अभी हाँ, आपका तो टाइम हो टाइम गया हो है गया बस, होगा हाँ, अभी तो। पर जल्दी से हम हाँ, लोग फिर फिनिश ऑफ करेंगे, वही है। कुछ कुछ होता है का गाना। बिकॉज 1 hour हो गया है। हाँ ठीक है। आपकी तो ललित जी इतनी बातें हैं कि हम लोग 2 3 एपिसोड 4 एपिसोड आराम से कर सकते हाँ, पता नहीं हमारे साथ में कितने एपिसोड हो गए होंगे। हाँ, अच्छा, कौन सा गाना सुनो, बताओ, आप कोई भी, बताइए। कुछ कुछ होता है का कोई भी गा दीजिए, बहुत अच्छे गाना है। अच्छा हाय हाय रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय, ये भी अच्छा है। अच्छा अच्छा। हाय हाय रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय, करता नादानियां क्यों पूछो तो। हाय 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 रे हाय ये लड़का, हाय हाय रे हाय, करता नादानियां क्यों पूछो तो। हाय कभी ये हमसे लड़ता है, कभी झगड़ता है,
न हो दूर से छेड़खानी, ये लड़का है दीवाना, है दीवाना 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 दीवाना, ये लड़का है दीवाना, है दीवाना 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 दीवाना। व्हाट अ म्यूजिकल मूवी, बहुत ही प्यारे गाने हैं इसके। और एक वो वाला भी हाँ इसका जो एक वो सैड सॉन्ग है ना, वो भी बहुत खूबसूरत गाना है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा। मेरे को याद नहीं आ तुझे रही। याद ना मेरी आई। हाँ, तुझे याद ना मेरी आई, किसी से अभी क्या कहना, वो भी हम्म। बहुत ही प्यारा गाना है वो था, बहुत 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 ज्यादा। प्यारा, बहुत ही अच्छा तो गाना। एक एक गाना एक्चुअली, अभी 1 घंटा हो गया है ललित जी, और आई जी नो जी। आप भी बहुत थक गए होंगे, इतनी देर हो गई आपके लिए भी, बहुत लेट हो गई है। सो एक जाते जाते एक देशभक्ति का जो आपका फेवरेट गाना हो, इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी मूवी का गाएं, कोई भी गा दीजिए, किसी भी, नहीं नहीं है ना। नहीं, मैं बिल्कुल समझता हूँ। देखिए, मुझे प्रदीप जी के गाने हाँ जी, बहुत अच्छे बिल्कुल लगते बिल्कुल। हैं। मेरे बहुत ही फेवरेट हाँ राइटर रहे हैं और बहुत गुरु समान। और मैं एक ही बार मिलने का उनसे मौका हुआ था। हाँ मैं उनको मिलने गया था घर पे, क्योंकि वो बहुत हाँ महान जी राइटर हैं। मगर मेरे को उनके पूरे वर्ड्स याद नहीं होंगे हाँ कोई भी जी। गाने के, मगर मैं सुनता हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे गाने। तो एक गा दीजिए। बहुत हाँ खूबसूरत जी। लिखे हैं। अच्छा, एक गाना। हम्म, हम्म, ये बहुत ही एक और कंपोजर रहे हैं। उनका नाम है प्रेम धवन। अच्छा। वो बहुत ही कम काम किया, मगर बहुत ही गुणी आदमी थे। वो लिखते भी खुद थे और बनाते भी बहुत सुंदर थे। और जैसे आनंद हाँ बख्शी एक जी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाँ टैलेंटेड हाँ। पर्सन थे, वैसे ही प्रेम धवन भी थे। मगर बहुत ज्यादा काम नहीं किया उन्होंने। हम्म, 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 मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे, वो मेरा रंग दे बसंती चोला, मैं रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। हम्म, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन से, आज उसी को पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मर्दों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, होए रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। चोला। ये गाना सुन के गूज बम्स आ जाते हैं एक्चुअली। हाँ, वेरी अरे क्या वेरी गाना है, ब्यूटीफुल सॉन्ग। तो मास्टरपीस। बहुत बहुत सो ललित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और आपके बारे में आज इतनी नई बातें सब लोगों को जानने को मिली होंगी, और आपके गाने तो माशाल्लाह है ही सोने पे सुहागा। एवरीथिंग इज बेस्ट एक्चुअली। ये है ना एक गाना, आई एम द बेस्ट, सो आई थिंक दैट सूट्स यू अ लॉट। आपके गाने थैंक यू, बेस्ट रहे हैं, थैंक यू। और अभी तक हर कोई वो गाने पसंद करता है, वो गुनगुनाता है और उनके जहन में रहते हैं। और अभी जितने भी रीमिक्सेस आ रहे हैं, आई थिंक दोज आर आल्सो गोइंग सो हॉट। एंड आई वुड रियली लाइक टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। और जितने भी ऑडियंस हैं और जितने भी लिसनर्स हैं जो जिनको गाने पसंद हैं, मैं उनकी तरफ से भी थैंक यू बोलती हूँ कि आपने 90s जो है वो बहुत ब्यूटीफुल बना दिया है। और वो जो गाने आपने हमारे इंडस्ट्री
इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को और हिंदुस्तानियों को दिए हैं, वो गाने अमूल्य हैं और वो सदा सदा ही रहने वाले हैं. So thank you so much for all these beautiful songs which you both had created and you had created. Thank you from the bottom of my heart, and thank you for joining the conversation today. Tea Time Talks with Tarang. It was an immense pleasure. Thank you so much, Lily. Thank you so much. Give my best to Atharva. Tell him I'd like to speak to him sometime. हाँ जी. And God bless him. Thank you once Thank you again. so much, Lily Thank you. ji. Bye. अच्छा, जाते जाते actually I want to thank you for the from Zoom events also. आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं from last 3 years से for मेरी आवाज 3 years, सुनो yes, अमेरिका के बिल्कुल. लिए, and और आगे भी जुड़े रहेंगे. You are बिल्कुल. our main judge, और मेरी आवाज सुनो का नाम और ललित जी का नाम बिल्कुल साथ साथ अभी चल रहा है in USA. बिल्कुल मुझे इतना मजा आया. तरंग मेरी आवाज सुनो, जब भी मैं आया हूँ इतने अच्छे कलाकार वहाँ सुनने को मिलते हैं. मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ और मैं हमेशा जाके सरप्राइज हो जाता हूँ. इतना टैलेंट है यूएस में, और बहुत ही अच्छी बात है कि म्यूजिक इतना फैला हुआ है वहाँ पे. My good compliments to you for organizing this always and selecting such amazing singers. Thank you so much. God Thank bless. you so much, Lalit ji. We'll see you soon. Looking forward again next year, and we'll see you soon. Thank you so much and happy Independence. Zarur. Okay. Bye. Thank you.